So I just knew कि मैंने ये काम करना है. It's just something in it connected with me. मैं theatre performance देख रही थी. Do you remember जहारा इखलाक? Of course I remember. वो थी उस play के अंदर झली कितने जावे में. And I saw her performing and I just एक थ्रिल आपको होती है. एक तो स्पेक्टेटर की ऑडियंस वाली थ्रिल होती है कि आप इन्वॉल्व हो जाते हैं देखने में. लेकिन for me it was a little bit more. I wanted to be there. I was not content just watching. I wanted to be a part of it. So that's where my love for theatre began. How old began. were you when your parents separated? 13. अच्छा. उसने क्या किया? Was it very difficult to understand or was it या कि अम्मी ने इतना उसको easy कर दिया? We had no resentment. Again, my parents were very on cordial terms with each other. अच्छा. फिर अम्मी ने कभी never said anything bad about my father. हमेशा because she cared for him so much. और दूसरा she knew कि important है बच्चों के लिए कि अपने father के लिए वो मोहब्बत भी हो और respect भी हो. So she handled that very carefully. And then because लाहौर में मेरे grandparents भी थे और फिर अब्बू भी आ गए थे तो आना जाना बहुत था. And then I had so much एक support system होता है when your grandparents are there and your aunts and uncles. ये खूबसूरती है हमारे culture में जो family system आपको एकदम से support करता है crisis में. Then you never feel alone. So we never felt alone. Did you ever ask him? Did you ever talk to him? ये पूछा ऐसा क्यों हुआ? No, because I understood. Okay, that's interesting because usually बच्चे नाराज हो जाते हैं या बच्चे समझते नहीं हैं. अच्छा, I don't think so. हो सकता है कोई subtle, कोई unrealized हो जो किसी और तरह से निकली हो resentment, लेकिन surface के जो 2-3 levels हैं मेरी psychology के उसमें तो नहीं. You're friends with him? Yeah, Abbu and I. We have a lot in common. We have a lot alike. तो अभी भी मैं आई हुई हूँ. I haven't told him yet. मैं उनको बताऊंगी. मैंने कहा यहाँ से free हो. So जब 15 साल के थे और वो प्ले देखा तो अब्बा से क्या बात की थी? Because he is a writer, he's a director, and he's been working and trying to change the world, है ना? The credit goes to Madhiya. She encouraged it a lot. उन्होंने I think कुछ देखा या she wanted me to be a part of it. जब actually पहले भी मैं उनसे एक दफ़ा मिल चुकी थी जब मैं 10 साल की थी और मैंने कोई स्टोरी लिखी थी. And I've always liked writing. I've always been writing ever since I was 9 years old. मैंने अपनी पहली कहानी लिखी थी. And she read that story and she said बहुत अच्छी, and she got it published in a newspaper. And if it wasn't for her, I would never have thought कि कोई ऐसी चीज़ है या if it's something I can do. हमेशा she always encouraged me to write and then to join the theatre group. लाइन तो एक ही थी मेरी उस वक्त क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती थी ना मुझे एक्टिंग आती थी. स्कूल के लेवल तक ही आती थी. But it was she really welcomed me, and I think that's why Abbu also kind of didn't object. He couldn't object. वो उनका सारा उन लोगों का काम ही होता है कि लड़कियों को करना चाहिए और आना चाहिए. They should express who they are. पर उसके बाद that was just a one-line role. उसके बाद एक बड़ा प्रोडक्शन कर रहे थे ये I don't know if you remember Caucasian Chalk Circle है ना ब्रेस्ट का. And they couldn't find a leading lady for it. So वो चली गई थी या ठीक नहीं थी कि क्या. And मैंने बहुत कहा था अब्बू से you're not suited, you're too young, you're 16 years old, तुम नहीं कर सकती. I said I don't care, मैंने करना है. And मैंने नमाज़ें पढ़ी थी, मैंने मन्नत भी मांगी थी. And finally they had no option, उनको मुझ पे मेहनत करनी पड़ी थी. But that was a real turning point. Even though he was right, I was too young, लेकिन फिर भी मेहनत करके मैंने कुछ कर ही लिया था उसमें. It was a fantastic feeling. I think he had very honest eyes. You meet somebody and they look straight at you, but the expression is just right. It's not a creepy expression. It's just a very honest, honest expression. साफ सुथरी आंखें. So लिखने की तरफ ज़्यादा जाते, सीरियल्स लिखना या फिल्में लिखने का नहीं शौक या नॉवल उसका शौक नहीं हुआ? I am working on something right now. But I don't know what that means because I've been working on it for the last 20 years. तो पता नहीं वो खत्म होगा भी क्या नहीं. तो ये क्या है, नॉवल है या अभी तो कहानी है. I don't know कि क्या फॉर्म लेगी क्योंकि आजकल ये सब कुछ इतना आया हुआ है कि maybe it needs to be dramatized or maybe it needs to be animated. कुछ मुझे पता नहीं. 2-3 चीज़ें इस तरह की लिख रही हूँ लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आई है, हर चीज़ इतनी आगे निकल गई है कि फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन भी अब you have to keep up to date with it. I don't know कि
people will be reading books in the next 5-6 So years. when you were becoming an actor, what were you planning? कि मैं कहाँ जाऊँगी? What were you thinking for yourself? कि मेरा ग्राफ क्या होगा? हाँ. मैं क्या बनूँगी? What were you thinking at that time? जब एक्टिंग की तरफ गई हूँ तो मेरा सबसे पहली जो मेरी ख्वाहिश थी वो this Royal Academy of Dramatic Art, RADA. You really wanted to study really it. wanted to go. I wanted to study it. I wanted to be in that environment where everybody thinks and breathes तो acting. ये कहाँ से आइडिया आया था? बहुत शौक था जब ये शुरू हुआ था सब अजोका के साथ। तो मैंने कहा था मैंने जाना है, तो दे सेड कि पैसे नहीं है। अम्मी अब्बू ने कहा था कि इफ यू कैन गेट स्कॉलरशिप्स, एंड वो ऑब्वियसली राडा के लिए तो पाकिस्तानी स्टूडेंट को तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, स्पेशली विद नो एक्सपीरियंस। एंड देन अब्बू ने काफ़ी ये समझा थी सेड कि वो यू नो व्हाट यू गोना डू विद दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, वो यहाँ पे तो नहीं अप्लाई हो सकती है पाकिस्तान में। उस वक्त तो हम इतने आगे नहीं थे। और ये कि अगर बाहर जाके इफ़ यू वांट टू लिव देयर एंड यू वांट टू एक्ट देयर, तो पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए तो आजकल वाली चीज़ थोड़ी है कि हर चीज़ में यू हैव टू पुट ऑल द एथनिक पीपल इन इट। अब उस वक्त तो नहीं होता था। इफ इट्स अ शेक्सपियरियन प्ले तो देन इट्स गोना गो टू पीपल हु आर फ्रॉम देयर। सो दैट वाज माय बिगेस्ट ख्वाहिश। वो जब नहीं हुई, मेरी खाला थी जो हाथ बहुत अच्छा देखती थी, उनको मैंने पूछा था कि मैं जाऊँगी बाहर पढ़ने। शी सेड नो, कहीं पे भी नहीं है। But she said you'll be very successful, so don't worry about it. And then I showed another, हमारे बहुत family के अंदर palmist and astrologer. I showed an uncle of mine, and he said whatever you do, किसी भी field में जाओगी, you'll always be in the limelight. So this is your chosen field, तो इसी के अंदर रहो. And I'm glad. I've never looked back. So पढ़ा, मगर you did go abroad to study? No, we went to India गए थे, मैं और कुछ colleagues, and हमने जो दिल्ली में हम गए थे जयपुर, बट वो था ये नेशनल NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उन्हीं के टीचर्स वहाँ पे आके और एक्टिंग डायरेक्टिंग की वर्कशॉप 1-2 महीने की थी। इट्स क्वाइट हेल्पफुल। तो वर्कशॉप तो यहाँ भी करते रहते बिकॉज ऑफ अजोका। हाँ, अजोका यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा था। So, कितने प्लेस किए थे अजोका के लिए बिफोर यू बिकेम अ टेलीविजन एक्टर? 10 साल मैंने किया अजोका के साथ का। तो सारे ही प्लेस के अंदर वो तो है ना कि जिस प्ले में आप जहाँ फिट हो जाओ तो आपको करना होता है। पर उसके बाद जब टीवी में गई तो देन आई जस्ट सेड गुड बाय टू थिएटर, बिकॉज वो मुश्किल हो गया था दोनों चीज़ें करना। काम सारा कराची में हो रहा था एंड थिएटर ज़्यादातर यहाँ होता है। So पहली मोहब्बत कब हुई? When I was 10 years old. है? हाँ। किससे? अब उसको बेचारे पता नहीं कौन है वो। His name was Ian and he was in my कौन सी 10 साल में क्लास 4 क्लास 5 कौन सी क्लास होती है? 5 समझे, क्लास 5। But he used to sit on the other, वहाँ तो we were in England, तो वो टेबल्स पे बच्चे सारे बैठते ना अलग अलग टेबल्स। We used to sit on the table next to the window, I remember. I think I just liked him because he was very tall. और कोई मुझसे लंबा और कोई था नहीं। That's interesting. अच्छा, फिर दूसरी? रियल या स्क्रीन पे? क्रशेस। चलो क्रशेस से फिर मोहब्बत पे आते हैं। क्रश कौन? क्या चीज़ अच्छी लगती थी? What attracted you?